Now, first we talk about the former J&K state, which comprises of Ladakh region also. The regions in the former J&K state were the mountains from north to south. In the former state of J&K, northernmost mountains were called as Karakoram. उसके नीचे हमारे पास थे लद्दाख, south of it Zanskar, then the Greater Himalayas, then the Middle Himalayas called as Pir Panjal, then there was Shivaliks. The topmost we were having Karakoram, then Ladakh mountain range, then we have Zanskar, then Greater Himalayas, then we have Middle Himalayas. इनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? पीर पंजाल बोलते हैं. And then we have the outer Himalayas or Shivaliks. So this was the alignment of mountain ranges from north to south in the former state of Jammu and Kashmir, जिसके अंदर हमारे पास जम्मू रीजन, कश्मीर रीजन और लद्दाख भी था. Now Ladakh is now the separate union territory and J&K is the separate union territory. ठीक हो गया? अब पूरे स्टेट ऑफ J&K को हम कितने रीजन्स में डिवाइड करते हैं देखेंगे आप. द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, the UT of Jammu and Kashmir is divided into 5 major physiographic divisions. 5 major physiographic divisions. Like number 1, we call them as outer plains of Jammu. Second is the Shivaliks. Third is the Middle Himalayas or the Pir Panjal. Fourth is our Kashmir Valley. And the fifth one is your Greater Himalayas. इसके पहले हम छठा भी ऐड करते थे. जब लद्दाख वॉज पार्ट ऑफ दिस, उसको बोलते थे लद्दाख प्लेट्यू रीजन. Now it is a separate union territory of Ladakh. So presently we are having 5 major physiographic divisions. अब सिटी ऑफ जम्मू किस रीजन में पड़ता है? माउंटेन रेंजेस के हिसाब से. शिवालिक के साउथ में, शिवालिक के नॉर्थ में. साउथ में वी हैव द आउटर प्लेन्स. वेयर इज कश्मीर वैली? North of Pir Panjal and south of Greater Himalayas. Here we have the Kashmir Valley. ठीक हो गया? चले जी, फर्स्ट रीजन हेडिंग देंगे हम आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू. आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू. The first region is the outer plains. These plains are locally called as Andarwa and Bajwat. Andarwa and Bajwat. Next point, these are basically the part of Great Plains of Northern India.
They are basically the part of Great Plains of Northern India and are formed by the alluvial deposits of Chenab, Tavi, and Ravi rivers, Chenab, Tavi, and Ravi rivers, and their respective tributaries. Next, their length is 110 kilometers. Width is between 7 to 30 kilometers. And height is between 325 to 350 meters. Length 110, width 7 to 30, and height is between 325 to 350 meters. Next, these plains include southern parts of Akhnur, Mud, M-A-R-H, Mud, Gajansu, Araspura, Bishna, Arnia, Hiranagar, and Kathua. अब देखो, ये हमारे शिवालिक्स हैं और उसके साउथ में वी हैव दीज आउटर प्लेन्स. अब जो हमारी सीजनल स्ट्रीम्स जिनमें पानी तभी आता है जब रेनी सीजन होता है, स्पेशली द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन जो अभी चल रहा है आपका. तो जो सीजनल स्ट्रीम्स आती हैं, they originate from Shivaliks and they crosses these plains. तो इन सीजनल स्ट्रीम्स को लोकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? खड्ड बोलते हैं, और वी कॉल देम इन इंग्लिश हिल टॉरेंट्स. हिल का मतलब इनका सोर्स इज हिल्स, टॉरेंट का मतलब होता है वेरी फास्ट फ्लोइंग वाटर, आर कॉल्ड एज हिल टॉरेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप. These plains are crisscrossed by the local seasonal streams called as khadds or hill torrents. First off, these khadds are characterized by rich growth of wild tall grass, locally called as खर. आपने देखा होगा इन खर्स में एक लंबी लंबी घास पैदा हो जाती है, उसको लोकली क्या बोला जाता है? खर कहता है. लोकली कॉल्ड एज खर, which is used for broom making और thatching purpose. कच्चे घरों की छत बनाने में काम आता है इसको, थैचिंग पर्पस. एंड ब्रूम क्या? झाड़ू बनाने के काम आता है. अब देखो, मैंने बोला दीज प्लेन्स आर
पार्ट ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ नदर्न इंडिया। अब देखो, अगर हम बात करते हैं इंडस रिवर की बात करते हैं, ये हमारी इंडस रिवर है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इज सतलुज। Now Satluj receives two rivers. One is Byas, second is Chenab. Chenab receives two rivers. One is Ravi, second is Jhelum. The land between two rivers is known as Doab. What are Doabs? The land between two rivers. तो हमारे पास एक दोआब ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब दोआब के नाम क्या हैं? इसको क्या बोलते हैं? बिस्ट दोआब, इसको बारी दोआब, इसको रेचना दोआब और इसको छज दोआब। अब जो हमारे आउटर प्लेन्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ अपर पार्ट्स ऑफ रेचना एंड बारी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू, outer plains of Jammu are basically the upper regions of Rechna and Chhaj Doabs. Rechna and Chhaj Doabs. ठीक है जी। तो दिस इज आर आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू। क्लियर हो गया सबको? नाउ नेक्स्ट, शिवालिक्स। सेकेंड फीचर इज कॉल्ड एज शिवालिक्स और द आउटर हिमालयास। शिवालिक्स extends from river Indus to Brahmaputra, from river Indus to Brahmaputra for a distance of 2400 kilometers. For 2400 kilometers. First off, in the UT of J&K, it is about 200 kilometers in length. It is about 200 kilometers in length between river Ravi and Jhelum. River Ravi and Jhelum. Next point. It is locally known as, these are locally known as Jammu Hills. Locally known as Jammu Hills. With height between 600 to 1220 meters. 600 to 120 meters. And width between 20 to 50 kilometers. 20 to 50 kilometers. Next point. The most important feature of Jammu region lies south of Shivaliks, and north of outer plains. South of Shivaliks and north of outer plains, which is known as, very very important by, Kandi Belt. सबने नाम सुना होगा, Kandi Belt,
between 300 to 700 meters. अब देखें आप, ये हमारे शिवालिक्स हैं, तो ये आपके आउटर प्लेन्स, ये आपके शिवालिक्स. अब बिटवीन द हाइट ऑफ 300 to 700 meters, this region is called as the Kandi belt of Jammu. अगर आप इसको इमेजिन करना है, जब आप अखनूर से जम्मू आते हैं हाईवे के ऊपर, तो आपके लेफ्ट वाला एरिया कंडी में आता है, राइट वाला एरिया जो है वो आउटर प्लेन्स में आता है. अगर आप जम्मू से पठानकोट जाते हैं तो सतवारी से अगर पठानकोट जाते हो हाईवे से, तो आपके लेफ्ट वाला पार्ट इज कंडी, राइट वाला पार्ट इज योर आउटर प्लेन्स. ठीक हो गया. तो फ्रॉम अखनूर से जब जम्मू आएंगे आप, तो आपके लेफ्ट वाला पार्ट कंडी है और राइट वाला पार्ट जो है दैट इज आउटर प्लेन्स. फिर जब आप जम्मू से पठानकोट जाते हैं तो आपके लेफ्ट वाला पार्ट इज कंडी और राइट वाला पार्ट इज योर आउटर प्लेन्स. तो इसकी आपने स्पेसिफिकेशन क्या याद रखनी है? इट इज बिटवीन 300 to 700 meters between one side outer plains and other side is शिवालिक्स. ठीक है जी. अब कंडी बेल्ट की अगर आप बात करते हैं, दिस इज द मोस्ट बैकवर्ड पार्ट ऑफ JNK, बैकवर्ड पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. वाई? अब देखो, हमारी जो मेजर जो हमारी स्टेट की इकोनॉमी है, यूटी की इकोनॉमी, वो किस पे रिलाई करती है? एग्रीकल्चर पे, है ना. तो आर्स इकोनॉमी इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. अब यहां पर एग्रीकल्चर आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए गुड सॉइल, वाटर अवेलेबिलिटी एंड गुड क्लाइमेट. अब यहां की जो सॉइल है, इट इज माउंटेनियस सॉइल विच इज नॉट फर्टाइल. अब यहां पे वाटर अवेलेबिलिटी इज नॉट देयर, तो इट इज वाटर स्कार्स रीजन. और क्लाइमेट तो अच्छा है, बढ़िया, ना सॉइल अच्छी है ना वाटर की अवेलेबिलिटी है. तो एग्रीकल्चरली दिस इज द मोस्ट पुअरेस्ट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इट इज द मोस्ट बैकवर्ड पार्ट. ठीक हो गया जी. बिकॉज आउटर प्लेस में वी हैव वेरी गुड alluvial सॉइल्स एंड हियर वी हैव द माउंटेनियस सॉइल्स. तो ये हमारे लिए एग्रीकल्चर के हिसाब से अच्छा नहीं है. तो यहाँ पे पानी को रुकना भी मुश्किल है, तो यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे ना पानी अवेलेबल है, ना यहाँ की सॉइल अच्छी है. तो एग्रीकल्चर इट इज द बैकवर्ड रीजन, और वी कैन से द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द कंडी रीजन ऑफ जम्मू. ठीक हो गया. चलिए आगे लिखेंगे. दिस बेल्ट लाइज बिटवीन रिवर रावी एंड चेनाब. दिस बेल्ट लाइज बिटवीन रिवर रावी and Chenab and is characterized with mountainous soils, khads and scarcity of water. Full stop. In this belt, agriculture is totally dependent upon rains. In this belt, agriculture is totally dependent on rains. And so here maize, millets, fodder, and at some places wheat is grown. First off, this is the most underdeveloped part of JNK. It is the most underdeveloped part of JNK. First off, here rearing and keeping
here rearing and keeping of cattle is important activity. For example, Gujars are the buffalo keepers. Gujars are the buffalo keepers, which are also known as Dudhiya Gujars. Also known as Dudhiya Gujars. Next point, the winter capital of J&K, that is Jammu City, lies at the foot of Shivaliks, on the banks of River Tavi, at an altitude of 366 meters. 366 meters. क्लियर यहां तक सबको? ठीक है। अब कंडी बेल्ट का एक और खासियत है, ये एरिया फ्लड प्लेन्स में नहीं आता. इट इज नॉट पार्ट ऑफ द फ्लड प्लेन्स. तो मतलब आज के टाइम पे जो हमारी सिचुएशन है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू रीजन के अंदर, जिनका घर कंडी रीजन में है वो फ्लड के ऊपर है. इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द फ्लड प्लेन्स. तो यहाँ पे फ्लड्स का कोई असर नहीं होगा. अब देखो ओल्ड सिटी की अगर हम बात करते हैं, ओल्ड जम्मू सिटी, क्या वहाँ फ्लड्स आए? नहीं आए. वाई रीजन? इट इज लाइंग मच अबव द हाइट ऑफ द फ्लड प्लेन्स. फ्लड्स कहाँ आ रहे हैं? लोअर पार्ट के अंदर. ठीक हो गया जी. तो इसकी खासियत क्या है? इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स. ठीक हो गया. नाउ नेक्स्ट इज मिडिल हिमालयास. मिडल हिमालयास और द पीर पंजाल. These are locally called as Pahad in Jammu region. And lies between River Ravi in east and Punch in west, and continues up to Muzaffarabad in POJK. Pakistan occupied Jammu and Kashmir. फुल स्टॉप. अब देखा जाए तो जो हमारी पीर पंजाल की जो अलाइनमेंट है वो इस डायरेक्शन में आती है, फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. अगर हम ऑन द होल बात करते हैं तो दे एक्सटेंड फ्रॉम रिवर ब्यास इन हिमाचल प्रदेश एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर इन पाकिस्तान. तो ये इनकी अलाइनमेंट है. ठीक है. तो पर हमारे जे में दे आर फ्रॉम रिवर रावी टू पुंछ एंड दे एक्सटेंड टू POJK इन मुजफ्फराबाद. अदरवाइज दे एक्सटेंड फ्रॉम ब्यास इन हिमाचल टू पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इन पाकिस्तान.
हमारे JNK में it lies between Ravi to Poonch. ठीक है जी, इसको ड्रॉ कर दो, उसके अलाइनमेंट को. अलाइनमेंट क्या है? फ्रॉम साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन. Next point, the important ranges of Middle Himalayas. The important ranges in Middle Himalayas in JNK includes Pir Panjal and Dhauladhar. Maximum is majorly it is Pir Panjal and some part of Dhauladhar. Otherwise, Dhauladhar lies majorly in Himachal Pradesh. So Pir Panjal lies majorly in JNK. ठीक हो गया? Includes Pir Panjal and Dhauladhar. Next point, the total width of Middle Himalayas in JNK is 60 kilometers. Total width of Middle Himalayas in JNK is 60 kilometers with average height of 3600 to 4600 meters. So height is between 3600 to 4600 meters. Next, अब आपको क्या लगता है? द सेक्रेड केव ऑफ वैष्णो देवी. ये शिवालिक्स में आती है कि मिडिल हिमालय में? शिवालिक्स में आती. गुड. नो, इट इज पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय. अब बताइए, वैष्णो देवी की पहाड़ियों में स्नोफॉल होता है? होता है, ठीक है. तो जहां पे स्नोफॉल होता है इट इज पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय. जहां स्नोफॉल नहीं होता है इट इज पार्ट ऑफ शिवालिक्स. ठीक है जी. अब क्या है, अब जो हमारी पीर पंजाल रेंज है, से दिस इज पीर पंजाल, रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह आती है जिसका नाम है तंजेर. वहां से पीर पंजाल की एक ऑफशूट है जिसपे 3 माउंटेन्स हैं जिनको हम बोलते हैं त्रिकुटा माउंटेन्स. और इनके एक में आपकी क्या है? द सेक्रेड केव ऑफ वैष्णो देवी. हाइट कितनी है? 5200 फीट. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, द सेक्रेड केव ऑफ वैष्णो देवी. द सेक्रेड केव ऑफ वैष्णो देवी lies in Trikuta Mountains, lies in Trikuta Mountains, which is an offshoot, of Pir Panjal, which is an offshoot of Pir Panjal in Riasi district. In Riasi district, with height of 5200 feet. Clear हो गया? तो वैष्णो देवी lies in Trikuta Mountains and Trikuta Mountains is part of Middle Himalayas, that is Pir Panjal, not Shivaliks. बड़े लोगों को एक confusion रहती है शिवालिक में. No, it is part of Middle Himalayas. ठीक हो गया जी. Next point. Several rivers of Jammu region. Several rivers of Jammu region have their sources in Middle Himalayas, like
तवी, बसंतर, उच्च, टोही, टोही को ही बोलते हैं पुलस्त्य रिवर, इसी को बोलते हैं पुंछ रिवर। टोही, पुलस्त्य, पुंछ रिवर। फिर हमारी मनावर तवी, ये राजौरी में है। फिर सेवा, जो बनी एरिया से होते हुए कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर रावी में जाके मिलती है। इस पे 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, सेवा 1 और सेवा 2। सेवा 2 बन चुका है, सेवा 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, दीज आर ऑल रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम मिडिल हिमालयाज इन पीर पंजाल और इन द स्टेट ऑफ जे-एंड-के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मिडिल हिमालय इन जे-एंड-के are famous for two very important valleys. Number one is Bhadarwa. आगे इसके डैश डालेंगे। Physiography and climatologically, it is similar to Kashmir. And so called as Chota Kashmir. Second is Kishtwar Valley. It is a small valley. Surrounded by coniferous trees. First off, it is linked with coniferous, coniferous, coniferous trees. It is linked with Kashmir Valley via very famous top, Sinthantop. Sinthantop लिख लेंगे, इसकी हाइट 3784 मीटर्स। 3784 मीटर्स इसकी हाइट है, और ये कनेक्ट करता है एक तरफ हमारे जम्मू में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है और कश्मीर में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। तो ये है आपका सिंथनटॉप। नेक्स्ट पॉइंट, किश्तवाड़ वैली has enormous potential for agriculture as well as high water potential. Has enormous potential agriculturally as well as high water potential, that is hydroelectric power potential. Hydroelectric power potential. अब देखो, हम जितने भी हमारे जे-एंड-के में न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वो मेजॉरिटी काम बन रहे हैं किश्तवाड़ में बन रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, पीर पंजाल रेंज has a number of mountain passes. For example,
नंबर 1 पत्नी टॉप पास 2024 मीटर्स इसकी हाइट है। सेकंड इज बनिहाल पास 2832 मीटर्स इसकी हाइट है। देन वी हैव योर पीर पंजाल पास, इसी को ही बोलते हैं पीर की गली। पीर पंजाल पास और पीर की गली, इसकी हाइट है 3494 मीटर्स। देन वी हैव सिंथन टॉप, हमने अभी किया, इसकी हाइट है हमारी 3784 मीटर्स। फिर हमारे पास आ जाता है शिव गली पास। इट कनेक्ट्स योर डुडू वैली एंड बसंतगढ़। नाम सुना होगा आप लोगों ने, डुडू बसंतगढ़, शिव गली पास। देन वी हैव छतरगला पास। इट कनेक्ट्स भदरवा एंड बनी in Kathua. Then we have Padri Pass. It connects Bhadarwa and Chamba in Himachal Pradesh. Then we have one more, डग्गन टॉप। आपने एक टाउन का नाम सुना होगा रामबन के अंदर, बूल, बूल एंड रामकुंडा। इट इज इन रामबन। नेक्स्ट लिखेंगे अदर पासेस इन पीर पंजाल। फर्स्ट, वेरी वेरी फेमस strategically, Haji Tir Pass. It connects Punch and Uri in Kashmir. We lost this pass in 1971. अगर ये पास हमारे पास होता तो पुंछ से उड़ी हार्डली कोई 30-40 किलोमीटर्स है, जस्ट 30-40 किलोमीटर्स। अब हमारे पता नहीं ये जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं ये सोए हुए थे उस टाइम पे। अब हमने 96,000 सोल्जर्स को कैप्चर किया था पाकिस्तान के इन ईस्ट पाकिस्तान, टुडेज बांग्लादेश। तो हमने ये वापस कर दिए विदाउट एनी लेवरेज टेकिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो अगर हाजी पीर पास हमने हमारे पास होता, सर्जिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पुंछ से उड़ी का रास्ता इज जस्ट 30 किलोमीटर, 30-40 किलोमीटर्स वाया हाजी पीर पास। ठीक है जी, नेक्स्ट एक वो लिखेंगे, ये हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे मुनावर पास। मुनावर पास, इसकी हाइट है 3600 मीटर्स।
It lies north of Pir Panjal Pass. It lies north of Pir Panjal Pass, overlooking Rajouri district. Overlooking Rajouri district. फिर एक लिखेंगे आप सच पास. सच पास. इसकी हाइट है 4,414 meters. It connects Chamba with Pangi Valley. Champa with Pangi Valley in Himachal. नेक्स्ट लिखेंगे रोहतांग पास. ये भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, वेरी फेमस. रोहतांग पास ये भी हिमाचल में है. इसकी हाइट है 3978 meters. 3978 meters. It connects Manali Hill Resort. Manali Hill Resort and Kelong in Lahul district in Himachal Pradesh. Next, important peaks of Pir Panjal. Number one is Indrasan. INDRASEN. Indrasan. इसकी हाइट है 6221 meters. 6221 meters. 6221 मीटर. It is in Kullu Valley or Kullu district of Himachal Pradesh. आगे डैश चलेंगे. It is the highest peak of Pir Panjal. सेकंड लिखेंगे आप नियो टिब्बा. ये भी कुल्लू में है. NEO नियो टिब्बा. सॉरी नियो नहीं, दियो. DEO डियो टिब्बा. ये भी कुल्लू में है और इसकी हाइट है 6001. 6001. 6001 meters. क्लियर हो गया. पॉइंट्स. the area between Shivaliks and Middle Himalayas. The area between Shivaliks and Middle Himalayas is occupied with longitudinal tectonic valleys. Longitudinal tectonic valleys called as dunes. Called as dunes. So what are dunes? These are tectonic longitudinal valleys called as dunes. तो एक तरफ पे हमारे मिडल हिमालयाज हैं, एक तरफ पे शिवालिक्स हैं. तो एरिया बिटवीन मिडल हिमालयाज and Shiwaliks is occupied by the longitudinal tectonic valleys called as dunes. इंडिया में जो फेमस दून्स हैं दैट इज देहरा, जिसको आप देहरादून बोलते हैं, चुंबी, कोटली, कोठरी, पटली. These are all examples of dunes in India. But dune valleys in J&K
are Sundarbani is a Doon Valley. Udhampur is a Doon Valley. Basoli is a Doon Valley. Dansal is a Doon Valley. Then your Ramkot is a Doon Valley. ये JNK की दून वैलीज हैं और ये इंडिया की दून वैलीज हैं. Anybody having any doubt till now? Clear हो गया? Next is Kashmir. कश्मीर वैली. अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. बिफोर दिस पीर पंजाल रेंज की एक बड़ी खासियत है. इसकी जो जम्मू की तरफ जो इसकी स्लोप है इज वेरी वेरी स्टीप. टुवर्ड्स जम्मू. तो आप ये कह सकते हो जम्मू फेसिंग स्लोप्स ऑफ पीर पंचाल आर वेरी स्टीप, और यू कैन से साउथ फेसिंग स्लोप्स ऑफ पीर पंचाल आर वेरी स्टीप, whereas the slope towards Kashmir Valley has a step-like pattern. ये अगर कश्मीर वैली है, there are three major steps. This is first step, this is second step, this is third step. आपने जगहों के नाम सुने होंगे. तंगमर्ग, गुलमर्ग, खिलनमर्ग. सुने ना? लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पीर पंजाल में लिखेंगे. द जम्मू फेसिंग स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल, द जम्मू फेसिंग स्लोप्स, जम्मू फेसिंग और साउथ फेसिंग स्लोप्स, जम्मू फेसिंग और साउथ फेसिंग स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल are very steep, whereas the north facing or Kashmir facing slopes of Pir Panchal falls gradually in a step-like pattern. In a step-like pattern, that is, 3 steps are seen from the Kashmir Valley. That is, next line में first step dash Tangmarg, उसके नीचे second step Gulmarg, third step Khilanmarg. ठीक हो गया? डन? ये ड्रॉ किया भाई, ड्रॉ कर लो इसको. किसने नहीं किया ड्रॉ? इतना गंदा ड्रॉ करने को नहीं बोला मैंने, अच्छे से ड्रॉ करो. अपने मजे जैसे से शुरू करते हैं ना. 3 ही करने हैं, ज्यादा नहीं करना है.
तो नेक्स्ट इज योर कश्मीर वैली, ये हम कल करेंगे, ये बहुत लंबा है, इसमें समझाने वाला एक बड़ा कुछ है, तो विल टॉक अबाउट इट टुमारो. एनीबडी हैविंग एनी डाउट? इन द आउटर प्लेन्स, शिवालिक and your middle Himalayas. Okay, thank you. Good day.